કરી અને ત્રિસૂત્રી સાધના જ્યારે જીવનમાં આવશે ત્યારે એમનો જે અસર છે એ સમગ્ર, કારણ કે આપણે શરીરના રોગો છે એ તો બેઝિક વાત છે, પરંતુ અહીંયા શરીર, મન અને બુદ્ધિ અને આત્મા સુધીની વાત છે એની આપણે વાત કરીએ છીએ. એટલે કે સાધનાની જે વાતો કરવામાં આવે છે તો ત્રણેય પાંચ છે એ વસ્તુ થશે. ખાલી રોગ સારો થઈ ગયો હશે તો ફરી પાછું મન વિચલિત હશે તો ફરી રોગ આવશે. હવે હું બરવાડાથી પધારેલા રમાબેન છેલડીયાને કહીશ કે એમનો અનુભવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ રમાબેન રમેશભાઈ સેલડિયા, બરવાડા. મારો અનુભવ એવો છે કે અમારે શિબિર શું છે, તપ સેવા સુમિરન શું છે એ ખબર જ નહોતી. એટલે રામજીભાઈ ઠુમર છે ને એના બેન અમારે ગામમાં બરવાડામાં છે સાસરે. એના ઘરવાળા કે તમારે આવું છે શિબિરમાં, હાલીન છે? તો અમે એના ઘરવાળા કે હા મારે આવું છે. અહીં પૂછ્યું રમેશભાઈ તારુને તો કે બસમાં સીટ થઈ ગઈ છે પૂરી, હવે તમારો વારો નથી આવ્યો. પછી બોલ્યા થોડા દિવસ છે ને ત્યાં વારો આવી ગયો. મેં કીધું તમારે ત્યાં જન્મ છે શિબિરમાં, ત્યાં હાલી જવામાં? તો કે મને જવા દે. ગયા 7 દિવસ શિબિર કરીને આવ્યા. પછી ઘરે આવીને મને કે તારે કર્યા જેવી છે શિબિર બધું. મને ડાયાબિટીસ આવી, મહિના 2 મહિના પછી પાછી બતાવવા આવી તો બીપી આવી અને પાછું કોલેસ્ટ્રોલ આવી. 3 ટીકડી મારી ચાલુ હતી. પછી મેં કીધું હા તો હું કરીશ, પણ ડાયાબિટીસની અને કોલેસ્ટ્રોલની બંધ કરી. પણ અહીંયા એક જે મેડિકલ છે ને એમાં જેટના બાબાનું છે એટલે કે તમે બીપીની દવા બંધ ન કરતા કાકી. એટલે મેં કીધું હા મેં છાનું મને ચાલુ રહી. બંધ કરી તો પેરાલિસની બીક લાગે, એટલે કે તમે બંધ ન કરતા. મારા કાકા અંકલને કહેતા નહીં. તો કીધું નહીં, ચાલુ રહી. પછી મેરઠ જવાનું છું. ત્યાં શાસ્ત્રીજીની મહિલા એની વાત સાંભળી, બધું પ્રવચન સાંભળ્યું. તે દિવસેથી ડસ્ટરમાં નાખી દીધી. તો મેં 8 વર્ષ ટીકડી દવા કોઈ વસ્તુ લીધી નહોતી. મને મનમાં પણ નહોતું કે મારે ડાયાબિટીસ છે કે નહીં, કાંઈ નહીં. પછી હમણાં પાછી ચાલુ કરી દીધું ખાવાનું. જાત્રામાં ગઈ ને તો 1.5 મહિના પહેલા મેં ચાલુ કરી દીધું. તો પાછું આવ્યું. પાછું ઘરે આવીને મેં કીધું આને હવે દવા પાસે જવું જ નથી મારે. હવે મને નફરત આવી ગઈ. ડૉક્ટર ખોટા જ છે બધા. એક વસ્તુ બીજી પરબારી ત્રીજી આવી ગઈ. હવે મને શું કીધું ખબર કે તમારે એન્જિયોગ્રાફી કરવી પડશે. હવે આ ઉંમર 60 વર્ષ થઈ ગયા તો તમારે હવે નળી બ્લોક હોવી જોઈએ. એટલે મેં કીધું આની પર ભરોસો આપણે રાખવો નથી. મારા બાબો કે તો મમ્મી આપણે રાજકોટ જઈ આવી. રાજકોટ ગયા તો એ મિસેસે બધા રિપોર્ટ કર્યા મારા, કોલેસ્ટ્રોલના, ડાયાબિટીસ, વાલ, આ તે બધું જોયું, હૃદયની દિવાલો બધી બરાબર જ છે. તો મેં કીધું આ ડૉક્ટરના ચક્રમાં ફસાવું નથી આપણે, અને આપણે દવા બંધી. મેં ઘરેથી કીધું ચંદુભાઈ પૂછી, એટલે મારા ઘરવાળા ક્યાં હમણાં શાસ્ત્રીજી આવશે ને પછી આપણે મુલાકાત લઈ, પછી ચંદુભાઈને પૂછશું. ત્યાં લગન તમે તરત જ બંધ કરી દીધું ખાવા પીવાનું. જાત્રામાં કંઈ મળે નહીં, જ્યુસ ચા તે બધું ચાલુ રાખ્યું. એટલે મેં કીધું કાંઈ મને વાંધો નથી, એટલે તો 3 ટાઈમ ખાવાનું ચાલુ કરી દીધું. અને ત્યાં ધ્યાન કે કાંઈ થયું જ નહીં કોઈ દિવસ. એટલે ભૂલી જઈ એટલે પાછી આવશે. એટલે ભગવાને સાધના આપી છે. મને વિચારમાં નહોતું તો અત્યારે 83 આવી. 200 ઉપર આવતી ડાયાબિટીસ, અત્યારે 83 આવી ગઈ. તો ભાઈ કે કાંઈ વાંધો નથી, તમારી રિપોર્ટ કરાવવી જોઈએ. તો પછી મેં બીજી પહેલી પગયાત્રામાં જવાનું નક્કી કર્યું. અહીંથી 4 સાવરિયા ગઈ. પછી બીજી મધવી ઉપર 7 દિવસ પહેલા વાર એમ થયું કે થાય કે નહીં જાય છે. પછી થઈ ગયું
એ યાત્રા પૂરી થઈ ગઈ પછી પંઢરપુર, પૂનાથી પંઢરપુર ગયા. ત્રીજી અહીંથી ભાવનગર, જૂનાગઢથી ભાવનગર કરી અને ચોથી કરી 84 કોસ વ્રજમાં કરી. 4 તીર્થયાત્રા, 2 નવરાત્રી, 8 વર્ષ થયા કરું છું. કોઈ જાતની કામ કરી ખેતીમાં તો કોઈ વાંધો આવતો નથી. ઉપવાસ ક્યાં છે એ 7 દિવસ ખબર નથી પડતી. મારો બાબો અને મારી વહુ પણ બે નવરાત્રી 9 દિવસ ઉપવાસમાં કરે છે. એને સાધના નથી કરતા પણ નવરાત્રી કરે છે. ક્યારેક એવું લાગે ને તોય દવા નથી હતા અને ઉપવાસ કરી નાખે, મૂંઝન ને એવું કરી નાખે. ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીને ભાગ કાઢી નાખે. બસ જય શ્રી કૃષ્ણ. साधना के 3 सूत्रों की हमने बात की. मैंने जो बात की गुजराती में कहूँ तो કે સાધના કરી આ ફાયદો થયો, પછી મૂકી દીધું, આમ થયું. તો આ સાધના પહેલા દિવસથી ડૉક્ટર સાહેબે કીધું કે આ કોઈ રોગ મટાડવાની થેરાપી નથી, ચિકિત્સા નથી. આ એક જીવન પદ્ધતિ છે અને એ શાસ્ત્ર સંમત અને વિજ્ઞાન સંમત છે. અને જગતગુરુ શિવે સમગ્ર માનવ જાતના કલ્યાણને માટે આપેલી સાધના છે. જ્યારે સતીને પ્રશ્ન થયો કે જગતની ઉત્પત્તિ જે પરમાત્માએ કરી હોય તો આ જગત દુઃખી કેમ છે? જ્યાં જોઈએ ત્યાં દુઃખ, અને માનવ જાત દુઃખી કેમ છે? ત્યારે જગતગુરુ શિવે કીધું કે ભાઈ મને તો ખ્યાલ હતો, મેં તો બધો પ્લાન પ્રોજેક્ટ બનાવી રાખ્યો છે. એટલે એમને રામચરિત માનસ જે સંભળાવે છે અને પછી જે રામચરિત માનસ છે પૃથ્વી ઉપર આવે છે અને રામનો જન્મ થાય છે, આપણે ખ્યાલ છે. અને એક એવું રાજ્ય કે જેની આજે પણ ઝંખના 1000 વર્ષ થયા પછી પણ છે કે આ દેશમાં કે આ વિશ્વમાં રામ રાજ્ય આવે. આપણે જોયું નથી, પરંતુ મહર્ષિ વાલ્મીકીની, તુલસીદાસજીની કલમે લખાયેલા જે કાવ્યોની અંદર એ શાસનની મધુરતા છે કે જીવનના ત્રણેય પાંખો, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક, ત્રણેયમાં ક્યાંય રોગ નહોતા. દૈહિક દૈવિક ભૌતિક તાપા, રામ રાજ્યના કાહુહી વ્યાપા. ફિઝિકલ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, ઇમોશનલ કે સ્પિરિચ્યુઅલ કોઈ પણ સ્ટેટની અંદર કઈ પ્રશ્નો નહોતા. એવું નહોતું કે બધાય કરોડપતિ થઈ ગયા હતા, બધાની ઘરે મર્સિડીઝ બેન્ઝ આવી ગઈ. ત્યાં છે ને કે રામ રાજ્ય એટલે કે સાધારણ પ્રકારનું રાજ્ય, પરંતુ લોકોના જીવનો એવા હતા કે પરિસ્થિતિઓ કોઈ પણ આવે, સુખ દુઃખ આવે, છતાં પણ આનંદમાં કઈ રીતે રહી શકાય એવું 14 વર્ષ સુધી તપ કર્યું હતું. અને એ કાળક્રમે જે બદ્રીનારાયણ ત્રિપાઠીજી, એને ઉપર પ્રભુ શ્રી રામની અને મા જાનકીની કૃપા થઈ, એમને સાધના મળી અને એ ગુરુ પરંપરાથી આજે યોગીજી મહારાજે એમ કીધું કે આ સાધનાના સિદ્ધાંતોને મેં બદ્રીનારાયણ ત્રિપાઠીએ કીધું કે આકાશમાં ઉડાડ્યા છે. જે ગ્રહણશીલ સાધક હશે એને ગ્રહણ કરી લેશે. બોલવાવાળા વક્તા તો અલગ અલગ હોઈ શકે. ક્યારેક કોઈ મોટા પ્રવચનથી ન સમજી શકાય એવી એકાદ આવી બેનની કે ભાઈની દિલથી જે વાતો અને શબ્દો હોય એનાથી પણ સાધક ગ્રહણ કરી શકે અને પોતાના જીવનની દિશા બદલી અને પોતાના જીવનને સ્વાસ્થ્ય, શક્તિ, આનંદ, જ્ઞાન અને પ્રેમથી ભરપૂર કરી શકે. તો આવો અનુભવના બીજા દોરમાં આપણે ઉપલેટાથી આવેલા મેણસીભાઈ શુવાને વિનંતી કરી પોતાનો અનુભવ છે. नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। आज ये कार्यक्रमનું આયોજન તપ સેવા સંમેલન જૂનાગઢની ટીમ દ્વારા થઈ રહી છે, એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મારું નામ વેણસીભાઈ સુવા છે, હું ઉપલેટાથી આવું છું, પેન્શનર છું અને આયુ મારી 74 છે.
આ સાધના સાથે જોડાયો હતો એ પહેલાં 2019માં મને કેન્સર થયું હતું અને યુરિનમાં બ્લડ આવતું હતું અને મેં ઓપરેશન કરાવ્યું હતું અને 6 મહિના પછી જ મને અલ્સર કોલેટાઇટિસ થયું, એટલે કે મોઢમાં બ્લડ આવવા માંડી ગયું અને 6 થી 8 મહિના સુધી મેં ગેસ્ટ્રોકેરની મેં સારવાર લીધી. તો એ સારવારમાં કોઈ બહુ મને ભલું ન થયું, એટલે પછી મને આ સાધના નો ખ્યાલ આવ્યો. એટલે કે મારું આખું બધું જો હું વિવરણ કરું તો 30 મિનિટથી ઓછું થાય, એટલે હું સંક્ષિપ્તમાં કહીશ. એટલે મેં 2021થી આ સાધના છે એ 2021થી આ સાધના સાથે જોડાયો છું. 2 વર્ષ સુધી હું રાજકોટ જતો હતો, તે પછી અત્યારે હું જુનાગઢ જાઉં છું. અને આ સાધના સાથે એમ કે તપ સેવા સુમેરીની જે પદ્ધતિઓ છે એને હું સારી રીતે ફોલો કરું છું. અને આજે મને કેન્સર કે અલ્સર કોલેટિસની કોઈ તકલીફ નથી મને. અને કેન્સરનો મારો હું દર 6 મહિને હું રિપોર્ટ કરાવું છું. એમાં એક છેલ્લી લીટી આવે છે કે ટ્યુમર સેલ ઇઝ નેગેટિવ, એટલે જે ગાંઠ બનતી હોય એના સેલ નથી. એટલે દર 6 મહિને મારે કેન્સરનો રિપોર્ટ કરાવવો પડે છે. અને અલ્સર કોલેટિસની છેલ્લા 1.5 વર્ષથી મને કોઈ તકલીફ નથી. અને જે અહીંયા જે સૂચના છે કે 14 કલાક સુધી કાંઈ ના લેવું, હું સાંજે 8 વાગ્યા પહેલાં જમી લઉં છું અને 10 વાગ્યા પછી લઉં છું. 10 વાગ્યા પછી લઉં છું એટલે સાદું બધું લઉં છું, બપોરે પછી કાચું બધું લઉં છું, એમાં ટમેટા કાકડી મૂળ બધું એ કંઈક બધું. અને સાંજે એક જ ટાઈમ જમું છું. અને સાંજે જમું છું એમાં એવું જે ગલ્લાવાળા બધી શાકભાજી હોય છે, દૂધી ને એ બધા જે શાકભાજી હોય છે એનું શાક અને રોટલી હોય છે, શાક વધારે એને અનુસરું છું. તો આજે એકદમ હું સ્વસ્થ છું. ધન્યવાદ. કેન્સર અને અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ માટે કોઈને સાધના સંબંધી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એમને પૂછી શકે. રાજકોટથી પધારેલા શ્રી અતુલાનંદ સ્વામી અતુલભાઈ અધિયા. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. જીવનમાં દુઃખ અને રોગ આવે અને એમની ઘણાને સાધના મેળવવા માટે સહજ રીતે મળી જાય. પરિવારમાં કોઈ કરતા હોય જોઈને કરી લઈએ સાધના. અને ઘણાને પછી રોગ ચિંતા આવે, તણાવ આવે એટલે રસ્તા ગોતતા ઘણીવાર હોય સાચો રસ્તો મળી જાય. તો મારે એવું જ બધું થયું કે ભાઈ તકલીફ આવે એટલે માણસ પછી જાવા નાખે ને, ગમે એમ કરીને એમાંથી બહાર નીકળવા માટે લોકો મહેનત કરે. કેવી પરિસ્થિતિ આવે 2011 નું વર્ષ અને અચાનક કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ જાય. જે વ્યક્તિ રોજની 35 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવતી હોય અને માત્ર જેની 63 વર્ષની ઉંમર હોય, 63 વર્ષની ઉંમર કંઈ વધારે તો કહેવાય નહીં, અને 35 વર્ષથી ચલાવતી હોય, 35 કિલોમીટર સાયકલ જે વ્યક્તિ 35 વર્ષથી ચલાવતી હોય એવી વ્યક્તિ આપણને ખૂબ પ્રેમ. મારા પિતાજી હતા, સંત જેવું જીવન. અને એ જમાનામાં તો કેવું 35 વર્ષ સુધી એ સાયકલ ચલાવે, ન્યૂઝપેપરનો બિઝનેસ કરે, ઘરે ઘરે છાપા નાખવા જાય અને ડાબા હાથમાં કાળા રંગના પટ્ટામાં ઘડિયાળ હોય. અને એ જમાનામાં તો લોકો ઘડિયાળ ઓછા પહેરે, તો એમ કે રમેશભાઈ નીકળ્યા એટલે અત્યારે આટલા જ વાગ્યા હોય. એવું નિયમિત જીવન, પ્રમાણિક જીવન, સદાચારી જીવન, સંતુલિત જીવન. એવું નથી કે આડેધડ જીવતા હતા. અને એવી વ્યક્તિ અચાનક આપણે મૂકી અને સોડિયમ ઘટી ગયું અને ડોક્ટરે કીધું કે ફલાણી ટ્રીટમેન્ટ કરો, માત્ર 24 કલાકમાં એ વ્યક્તિ ગુજરી જાય.
એને આ સાધના જ નહોતી ખબર. એને સાધના એને ખબર જ નહીં તો હું એમ કહું છું કે 63 વર્ષ નહીં 113 વર્ષ જીવે એવી વ્યક્તિ. જો એને આ સાધના ખબર હોત ને, એને રામાયણની નહોતી ખબર એવું નથી, એને સુંદરકાંડ ના પાઠની ચોપડી બધાને આપે, રામ રામ મંત્ર રોજ લખે. ઘણા લોકો કે રામ રામ મંત્ર લખી તો હાલ થઈ જાય. રામ રામ મંત્રની કેટલી બધી પુસ્તક એને ચોપડીઓ લખી નાખી, અને રામજીના મંત્ર લખે, સુંદરકાંડ કરે, પણ સાધનાની આ સાધનાની એને ખબર નહોતી. બરાબર. રામજીના ભગત તો હતા, અચાનક એ છોડીને જતા રહ્યા અને પછી ડિપ્રેશન આવી ગયું અને ઊંઘ આવવાની બંધ થઈ ગઈ. ઊંઘ આવવાની બંધ થઈ ગઈ એટલે પછી શું કરો તમે? ડોક્ટરો પાસે જવાનું ચાલુ થયું. પછી રાજકોટમાં સત્યપ્રકાશ સ્કૂલ છે, અહીંયા ઘણા બધા લોકો જતા હોય તો મને કોકે કીધું કે તમે ત્યાં સાહેબ યોગા કરાવે સવારે, તો તમે ત્યાં જાઓ. તો સત્યપ્રકાશ સ્કૂલમાં સવારે યોગા કરવા જતો. પછી તકલીફ કેટલી હતી, ઊંઘ જ ન આવે. ઊંઘ ન આવે એટલે પછી મારા મિસિસ છે તો બધા ડોક્ટરો પાસે લઈ જાય. તો ડોક્ટરો પાસે લઈ જાય તો ડોક્ટરો પાસે દવા હોય. ડોક્ટર પાસે જાય એટલે દવા તો આપે જ ડોક્ટર, કારણ કે આપણે એને ફી આપીએ અને આપણે કંઈક આપવું પડે. પછી ડોક્ટર પાસે લઈ જાય. એક ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા, મગજના ડોક્ટર હોય ને એ આમ હુડ આવે પેટમાં. પછી મગજના ડોક્ટર કેમ કે પેટની તકલીફ છે, ખરેખર મગજની તકલીફ તો કઈ ખબર પડે નહીં, ઊંઘ ન આવે. પછી જુનાગઢ શિબિરમાં આવ્યો, પહેલી શિબિર, બીજી, ત્રીજી શિબિર, ત્રણ શિબિર સુધી જુનાગઢ આવ્યો. મારી બાજુમાં ટીબી અને કેન્સર વાળું પેશન્ટ હોય ને, ઘસઘસાટ ઊંઘતું હોય, કિડની ફેલ વાળા ઘસઘસાટ ઊંઘતા હોય, આપણે ઊંઘ ન આવે. તો શાસ્ત્રીજીના રૂમ પાસે જઈને મારે ઊભો રહી જાવ તો મને ઊંઘ નથી આવતી. બરાબર. તો આવા બધા કેટલા બધા તણાવ. તો એ બધા તણાવમાંથી નીકળવા માટે આ શિબિરમાં આવવાનું ચાલુ કર્યું. વળી 64 ની શિબિર થઈ તો એમાં જવાનું. પછી સાચો ફાયદો ક્યારે થયો, જ્યારે ઉપવાસ શિબિર રાજકોટમાં 3 દિવસની થઈ અને એ બીજે દિવસે જ્યારે ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી ત્યારે ખબર પડી કે હવે કંઈક ફાયદો છે. 3 વર્ષ સુધી કંઈ એટલી બધી ઊંઘ નહોતી આવતી. એટલે પણ ઉપવાસ જો પહેલા શિબિર કરી હતું, ઉપવાસ શિબિર, તો ફાયદો થઈ ગયો. તો પેલો પાઠ છે તો સેવા. હવે સેવામાં કેવું છે કે દીકરીના લગ્ન હતા તો 126 ગ્રામ સોનું લીધું હતું. એમાંથી સોનાનો પણ ભાગ કાઢી નાખવાનો. એ આવકનો એટીએમમાંથી પૈસા 20,000 ઉપાડી એમાંથી 2,000 રૂપિયા ભગવાનના ડબ્બામાં નાખી દેવાના. પછી ઘણી બધી કઠિન પરીક્ષા તો આવે એટલે સેવાનો પાઠ પણ ખબર પડી. અને સુમિરન તો ધ્યાનમાં પણ બેસવાની સવારની ટેવ પડી ગઈ. ઉઠીને બેસી જ રહેવાનું અડધી પોણી કલાક, એવી ટેવ પણ પડી ગઈ. પણ ધીમે ધીમે જીવન સંતુલિત થઈ ગયું. બરાબર. તો તપ સેવા સુમિરનનો માર્ગ મળ્યો. પણ કેવી ઘટનાઓ બની હતી કે ઘરના ડિસ્ટર્બ. અને હમણાંનો તાજેતરનો એક બનાવ કહું. ભગવાન રક્ષા તો કરતા હોય, ઘરના માને કે ન માને એમાં આપણે જરાય ફરજિયાત મનાવવાની કોઈને જરૂર નથી. હમણાં દીકરાને 3.5 વર્ષનો દીકરો ને અચાનક પડી ગયો, બુલેટમાં કંઈક આવતા હશે સ્કૂલેથી, તો 15 કલાક લોહી નીકળ્યું. પણ તમે વિચાર કરો, ભગવાન બધી જગ્યાએ રક્ષા કરે છે. એ દીકરાને અચાનક હોસ્પિટલે પહોંચાડી દીધું. બરાબર. અને એ બાળક જીવે છે. તો સાધનાની અંદર તપ સેવા સુમિરનને આને પકડી રાખવું પડે, સંપર્ક અને સંવાદ. બીજી વસ્તુ, ઘણા લોકો મૂકી દે, દવા ખાવાથી સારું થઈ જાય, ફલાણું થઈ જાય, તો પૂછે તો જે કહેવામાં આવે ને એ આપણે કરીએ તો આપણે ફાયદો થાય. બાકી ખાલી શિબિરમાં આવતા રહેવાનું અને જાતા રહેવાનું, મળતા રહેવાનું, સત્સંગ સાંભળતા રહેવાનું, તો જ ફાયદો થશે. આ શિબિર કરીને પછી અદ્રશ્ય થઈ જાય તો કઈ બહુ લાંબો લાભ ન થાય. બરાબર. જય શ્રી રામ. इसमें बहुत से लोगों ने इतने व्यक्तिगत प्रश्न डाल दिए हैं. व्यक्तिगत प्रश्नों का यहाँ कोई जवाब नहीं देना ठीक है. व्यक्तिगत बातों में आपकी बहुत सी चीज़ें पूछनी जरूरी होती है. ठीक है ना.
अब खाली इन्होंने लिखा 10 साल से संधिवात की संधिया की समस्या है, क्या एक साधना से ठीक हो सकती है? अगर जिंदा है तो जरूर ठीक होगा, अगर करेगा तो। अब ये लिखते हैं मने गर्भाशय मासिष्ट, तो गर्भाशय मासिष्ट मने है तो कॉपी जमा करके शाम को मिलो, जरूर बताया जाएगा। ये कहते हैं मने लो बीपी की तकलीफ है, तो मने 6 मने मरो। ये कहते हैं 10 मिनट खड़ा नहीं रहा जाता पैरों में। शाम को कॉपी जमा करके आज मिल लीजिए, कल रोजी नहीं देखा जाएगा। जीवन का मकसद क्या है तो आप बताओगे, मैं खुद बताऊंगा। चलो मान लिया सार्वजनिक प्रश्न है कि ले लेगा, व्यक्तिगत प्रश्नों पे यहाँ बिल्कुल न जाए। मेरे ये योग गुरु हैं श्री रविंद्र ढाणा महाराज, सरल नम्र और नम्रता पूर्वक है। हजारों लोगों को स्वयं उनकी पत्नी बेटा योग क्लास लेते हैं। पत्नी को क्या लिखा भाई, अलमी बेटा एक ही है, मेंटल रिटायर है, उसको खुद को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, बिना एनीमा लैक्टिंग नहीं होती, बहुत दुख होता है। क्या इनको पूर्व जन्म कर्म कहते हैं? इलाज सुनाए। या उनको तकलीफ नहीं है, तुम्हारे को बिना मतलब की तकलीफ है, गुरु जी को तो तकलीफ है नहीं। अरे भाई उनको समस्या होगी तो वो आएंगे ना, जब तक विषाद नहीं होगा तब तक योग कैसे होगा, क्या बता दो। अब की बम्बई में हमारा प्रोग्राम सितंबर में रहेगा, उनसे कहिए गुरु जी से मिले। कोई पूर्व जन्मों का नहीं, मैंने बताया न पूर्व जन्मों का है, न ये कोई बकौती चली आ रही है, सब यहीं का कर्म का है। सवेरे मैंने संक्षेप में कहा था, मैंने कहा था 1-1 लीटर दूध सवेरे पीता था, वो दूध पीना बंद कर दिया, सर्दी जुकाम खत्म हो गया। याद करना पड़ेगा कब दूध दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कोई कसम नहीं है। कभी पुरानी आदत है तो शादी ब्याह में जाते तो केसरिया दूध बनता है ना, तो ईमानदारी से उससे कहता हूँ 100 ग्राम से ज़्यादा मत देना। हाँ, चाल वाले कहता हूँ 100 ग्राम देना, ये क्योंकि जो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं अभी दूध देख के देता हूँ, सीधी बात है। तो कोई मना नहीं है, तो दूध बंद किया, जिनका खाना बंद किया, बीमारी चली गई, ईमानदारी से भगवान का निकाला तो नींद आने लगी। अब जब कहो तब सो सकते हैं। ये बात दूसरी है कि नींद मिलती नहीं इतनी ज़्यादा, 4 घंटे आती है, इतनी ज़्यादा नहीं, जरूरत ही नहीं इससे ज़्यादा। तो बिल्कुल गुरु जी से कहिए, बिल्कुल मिलेंगे तो गुरु जी ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। एक्चुअल में योग के यही गड़बड़ हो गई। योग में मैंने बताया था ना, पहले नियम है तब आसन और प्राणायाम। आज यम और नियम को तो छोड़ दिया गया, केवल आसन और प्राणायाम में उलझ गए, तो बस वही समस्या आ गई। मैंने कहा कि मैं खुद ही 3-3 क्लासेस 2 सुबह 1 शाम लिया करता, खुद ही बीमार रहता था। चलिए, बाकी को लग रहा है कि व्यक्तिगत नहीं है, बाकी को लग रहा है कि सार्वजनिक है, ले लेते हैं बाकी लोगों को। कल प्रश्नों को लिया जाए कि आज ले लिया जाए? आज ले लें? चलो भाई, खटाखट करोगे तो खटाखट सोना निकलेगा, खटाखट वाला कर देते। चलो बोलो। પ્રશ્ન, ઉપવાસ એકાદશી હોય ત્યારે એનીમાં કેટલા ml પાણીનો લેવો જોઈએ? બીજો પ્રશ્ન છે, ભોજન બાદ बात यह है कि फास्टिंग विदाउट एनिमा ट्राइंग अगेंस्ट बॉडी, अगर आज उपवास करना है तो सवेरे 250 ग्राम पानी का एनिमा ले लीजिए, और कल अगर शाम को भी हो जाए तो और बढ़िया, क्योंकि उपवास में जो मल टूटेगा आसानी से निकल जाएगा।
तो रेक्टम वाश करना है, पोलर वाश नहीं करना है। एनीमिया का कोई इससे संबंध नहीं कि आप उपवास कर रहे हैं कि क्या करना है, आपको केवल रेक्टम वाश करना है। रेक्टम वाश करना है तो 250-300 ग्राम पानी सफिशिएंट। हाँ, जैसे कुल्ला करते हैं, लगता है एक बार में नहीं साफ हुआ तो कभी लगता है दोबारा डाल के पानी साफ कर दो, तो एक बार में नहीं दोबारा पानी ले लो, इससे ज़्यादा ભોજન બાદ સાંજે રાત્રે એનિમામાં કેટલા ml પાણી લેવું જોઈએ? इधर बोलो। ભોજન બાદ સાંજે રાત્રે એનિમામાં કેટલા ml પાણી લેવું જોઈએ? तो हिंदी भी बोल सकते हो। बात ये है कि भोजन बाद लो चाहे भोजन के पहले लो, खाने न खाने से एनीमिया का कोई लेना देना ही नहीं। खाना जो खा रहे हो वो जा रहा आमाशय में, एनीमिया जो ले रहे हो वो ले लो मलाशय में। खाना और न खाने से कोई लेना देना नहीं। एक डॉक्टर हुआ है, डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा, भारत में 2 डॉक्टरों ने एनीमिया पर बहुत प्रयोग किया। एक डॉक्टर हीरा लाल, उनकी किताब है सब लोगों की एक दवा एनीमिया, जन स्वास्थ्य प्रकाशन भगवान, हाँ करीब 80-90 पेजों की किताब है वो, एनीमिया पर बहुत काम किया उन्होंने। उससे पहले काम किया डॉक्टर के लक्ष्मण शर्मा ने एनीमिया पर, बहुत ज़्यादा काम किया एनीमिया पर। और उन्होंने 250 ग्राम पानी को के एनीमिया को शक्तिदायी एनीमिया, जबकि 1 लीटर के पानी को एनीमिया को हिंसक एनीमिया कहा। मैंने विस्तार से कल चर्चा की। मोतियाबिंद भी क्योर हो सकता है इसमें? होता है परंतु गारंटी नहीं ली जा सकती। मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन करा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शरीर सुधरती दिन कायदे से करो साधना और इसके बाद ऑपरेशन करा लो। जरा सा काम है, होता क्या है कि जाला आ जाता है हमारे लेंस पर। प्रकृति ने लेंस की सुरक्षा के लिए पर्थ बिछा रखी है। धीरे धीरे वो पर्थ हमारे रहन सहन खान पान से व्यवस्थाओं से वो पर्थ खराब हो जाती है, तो मटमैली हो जाती है, तो धुलाई तो उसकी हो नहीं सकती, तो लेंस से दिखाई कम होने लग जाता है। डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेट करके उसको निकाल देता है। निकालने के बाद लेंस भी डाल देता है। हम उसके ऊपर पर्दा नहीं लगा सकता, इसलिए चश्मा लगा देता है, ठीक है ना। तो जो खराब हो गई अब होने को भगवान करे तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। साधना से बहुतों के मोतियाबिंद खत्म होते हैं और गारंटी लेके नहीं कहा जा सकता कि कब मोतियाबिंद खत्म हो सकता है। इसलिए हम तो रोगी को राय देते हैं कि ऑपरेशन करा लो, बेकार हाँ जी बोलो बोलो। खाना खाने के बाद 14 घंटे के बाद खाना हजम होता है तो एनीमा तभी लेना चाहिए, क्योंकि पेट खाली होगा तो एनीमा से फायदा होगा। हाँ जी, बचपन में हम लोग अंगीठी जलाते थे वो कोयले वाली, तो जब नहीं जलती थी तो नीचे से जरा सा झाड़ देते थे तो अंगीठी तेज जल जाती थी। तो जय बार खाई तय बार जाई, ना आए तो वहाँ लगाई, ठीक है। और 14 घंटे तो नॉर्मल खाने को, पूरी कचौड़ी आदि खा रहे हो तो 18 से 20 घंटे ले सकते, छोले आदि 24 घंटे ले सकते, भटूरे आदि 24 से 36 घंटे ले सकते। तो ये नहीं सुबह शाम दोनों समय पेट साफ हो जाए, तो ये इसका प्रयास रहेगा। अपने आप पेट साफ हो जाए बहुत बढ़िया। जय बार खाई न आए तो लगाई, लगाओगे नहीं होगा। यहाँ जो हर्बल टी पीते हैं वो कैसे बनती है? घर पे बना सकते हैं? कहाँ से ले हम? बाजार से? हो गया बापू, हो गया। ये किताब है प्रकृति की रसोई से। इसमें जब गर्म पेय दिए गए हैं तो गर्म पेय में ये हर्बल टी बनाने का नुस्खा भी दिया गया है, और बना करके इसको आप रख लीजिए। ये पेज नंबर 34 पर इसको बना करके नुस्खा भी दिया गया है। आप एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। थोड़ा मोटा ही पीसिएगा, बहुत बारीक नहीं, क्योंकि बहुत बारीक पीसने से गंध उड़ जाती है जल्दी। थोड़ा मोटा पीसें और अच्छी तरह उबालें। सभी दी हुई है 1 टीस्पून में 3 कप चाय बनती है। इस किताब का प्रकृति की रसोई से देखिए, अगर
आप हिंदी भाषी हैं, ये किताब है तब सेवा सुमिरन, ये 250 रुपये की किताब थी, पर तब जी शताब्दी वर्ष में संस्था ने इस पर 100 रुपये की छूट दी, फिर 150 रुपये की किताब हो गई। अगर आप 150 रुपये की किताब खरीद लेते हैं तो एक कंप्लीट गाइड बुक, कंप्लीट तब सेवा सुमिरन समर्पण पर कंप्लीट, किसी को गिफ्ट भी करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। हालांकि इसका गुजराती वर्जन भी है, परंतु ये 300 रुपये का है, 300 रुपये का है, क्योंकि इसके जो अंदर के पृष्ठ हैं ये बाद में ये फोटो ये सब कलर डालेंगे, इसके पेजेस बहुत बढ़िया क्वालिटी में हैं। तो ये नई कॉस्ट जो आई थी ये 300 है। एक्चुअल में ये किताब किसी व्यक्ति ने कहा था कि मैं हर एक हिंदू के घर में पहुंचाना चाहता हूँ, तो उसने संस्था से लेकर के उसने छपवा दी। बाद में वो व्यक्ति जब मरा तो बच्चों को लगा कि हम क्या करेंगे, तो संस्था ने कहा ठीक है भैया हमें दे दे, जो तेरे को पहुँचा ये ले ले हमसे। फिर संस्था ने इस पर डिस्काउंट करके पहुँचाने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छपी थी। तो ये किताब एक सिद्धांतों की ले लीजिए, और ये एक प्रैक्टिकल की किताब है। इसे इसमें सारा बनाने, खाना और एनिमा भवन सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप कंप्लीट एक सिद्धांत की माध्यम से दो किताबें लें तो आप कंप्लीट सिद्धांत पकड़ सकते हैं। आप गुजराती में ही पढ़ना चाहें तो ये 300 वाली है, और इसके साथ ये अभी गुजराती में नहीं हुई है, प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी ही गुजराती में ये आ जाए। क्रिकेट की रसोई से ये कोरोना काल की देन है, बहुत से लोगों ने गुजराती में, मराठी में, हिंदी में सुन करके अपने घर से बना दी किताब। पर जब हम कहते थे कि इसमें यार ये गलत है, ये चेंज करो, तो वो कहते थे आप कर दीजिए। और इतना टाइम मिलता ही नहीं था कि प्रूफ रीडिंग करके हम पूरा कर सकें, हम पहुँचाने बता देते थे, पेज पलटते थे। कोरोना काल में आना जाना रुक गया 6 महीने के लिए, तो राम जी ने ये कभी एक एक किताब का पन्ना लिखा जाता, मैथ्स वाले को दिया जाता और कहा जाता देख इसमें अकल मत लगाना। मैथ्स वाले को कहा गया इसमें अकल मत लगाना, जैसा लिखा है हूबहू बना करके दे। और 5 लोग बैठ करके उसको चपते पास करके, ओके होता तो ठीक है, नहीं ओके होता तो पहले उस कॉपी में सुधार किया जाता जहाँ लिखा गया है, और तब बनता। इसमें 2 उदाहरण आपको छोटे से दे। तो इसमें एक खीरे का हलवा, जो आप लोगों ने खाया था ना दूसरे तीसरे दिन, खीरे का हलवा, तो बनना था खीरे का हलवा। और जब बना तो लोगों ने कहा ये कहीं से हलवा तो लग ही नहीं रहा, क्या लगा, बोले तो खीर लग रही है, इतना रसीला हो गया। तो ढूंढा गया कारण, तो मालूम पड़ा कि खीरे को घिस करके, छील करके, चख करके घिसा जाए और उसके पानी को अलग कर दिया जाए, पानी बहुत निकलता उसमें, तब हलवा बनेगा। उसमें मान जो भी मिलाना मिलेगा, पर तो उसमें पानी नहीं निकाला गया तो पतला हो गया। तो देखी तो हुआ कि एक आइटम बढ़ा दीजिए, इसमें खीरे की खीर ली, ये आइटम भी बढ़ा दिया गया। फिर एक और बना, इसमें रोज टी, गुलाब की चाय लिखी है, रोज टी। तो पूरी बनाने की विधि, जो चाय बनी, वो चाय बनी तो उसका कलर गुलाबी कलर नहीं आया, वो हरे रंग का कलर आ रहा, स्वाद तो ठीक आ रहा था, और कलर नहीं आ रहा। तो स्वाद भी थोड़ा सा कमी थी, बड़ा परेशान। तो मैंने वैसे ही बना के लाया, तो मैं सोलमन को बुद्धू इसमें नींबू नहीं डाला क्या तुमने? बोला आपने कॉपी में लिखा ही नहीं है। आपने कहा आपने जो ये लिखा, देखा उसमें नींबू लिखा ही नहीं था, फिर नींबू मंगवाया, और नींबू डालते ही उसमें कलर भी गुलाबी आ गया और हल्का सा खट्टा पड़ते ही स्वाद भी उसका डबल हो गया। तो ये उसमें किताब में देखेंगे, इसको बनाते समय ध्यान रखा गया है कि जो भी चीजें पड़ी हैं वो क्या क्या पड़ा है उसकी फोटो भी है, जिस नाम तो लिखे ही है, उस हर चीज की फोटो पड़ी है। कोई भी चीज देखेंगे तो क्या क्या पड़ा है उसकी पूरी फोटो पड़ी, और बन करके जो तैयार होकर के आया, जो बन करके तैयार होकर के आया,
वो भी इसमें फोटो पड़ी। ऐसा नहीं कि खाली अब जैसे धनिया टमाटर की चटनी, ये धनिया टमाटर मिर्ची ये सब पड़ा है और बन करके जो तैयार हुई होगी। नमक पड़ा है तो नमक भी इसमें फोटो में आपको मिलेगा। जो भी चीज़ जिसकी देखेंगे तो उसमें ये खासियत दी गई है ताकि आपको पहचानने में भी कभी नाम नहीं समझ में आए तो चीज़ पहचान करके भी आप बना सकते। हाँ जी। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बार होता है तो पूरा जीवन मिटता नहीं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। आप मार्गदर्शन करें। डॉक्टर कुछ भी कह सकता है, डॉक्टर कहने के लिए तो स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। नंबर 1, नंबर 2, हर व्यक्ति अपनी योग्यता कह सकता है। जैसे हमसे कोई कहे तो हम कहेंगे भाई जिंदा है जब तक सांस तब तक आस, जिंदा है तो ठीक हो सकता है, परंतु ये मेरी योग्यता है। हमने योगी जी के मुंह से सुना ऐसे भी संत हैं जो अपनी जिद पर आ गए तो मुर्दे को भी खड़ा कर दिया उन्होंने। ऐसे लोगों के विषय में भी मैंने सुना। हाँ, जिद पर आ गए तो मुर्दे को भी खड़ा कर दिया। योगी जी बताते थे यहाँ की दिल्ली के जामा मस्जिद के एक फकीर पड़ा रहता था। एक बुढ़िया आई लेकर के बच्चे को, पोते को, मुर्दे को था, बोले इसको ठीक कर। उसने देखा, बोले मुर्दे ठीक हो, चल ले आई मुर्दा ठीक कर। बुढ़िया बोली तू ठीक कर सकता है, इसको ठीक कर। तो बोले तेरा दिमाग खराब है, मुर्दे ठीक हो जाए चल। जब मैं कह रही मेरा इकलौता है ये बारिश, इसका बाप मर गया, मेरे लिए और कोई सहारा नहीं, इसको तुम ठीक कर। तो कह बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है, ठीक करो। भगवान में ठीक करो। बोले तू ठीक कर सकता है, तू नहीं कर रहा। तो क्या ठीक हो जाए? बुढ़िया जिद कर, बाबा ने डंडा फटका। बोले तो खुदा का वास्ता तू खड़ा होगा। खड़ा ही हुआ। उसे कहा देख मैंने कह दिया ना, नहीं खड़ा होगा। अरे बोले तू काहे दे सके? तो बोला कि तुझे खुदा का वास्ता देख भी रहा, तेरी दादी रो रही है, तू खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा होगा? तू खड़ा नहीं हुआ। तो उसने कहा कि देख मैंने तेरे सामने कह दिया, अब मत कहना मेरे से। बुढ़िया बोली कि मैं कह रही हूं तू कर सकता है, तू कर लेगा इसको। मैं यहां से जाऊंगा नहीं, तुझे खड़ा करना पड़ेगा इसको। अरे तू इसको बोल, तू इसको बोल। कुछ देर को भी गुस्सा है, डंडा कहा मैं कह रहा हूं इतनी देर तक समझ में नहीं आ रही, खड़ा हो जा। और खड़ा हो गया। योगी जी बताते हैं योगी जी की बात पर ऐसा नहीं, संत जब अपनी जिद पर आ जाए, अपनी जिद पर, अभी तक वो खुदा का वास्ता दे रहा है, अब उसने कहा कि खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। भगवान अपने लिए नियम नहीं तोड़ेगा, परंतु जब भक्त पर आएगी, भक्त की इज्जत का सवाल आएगा तो नियम भी तोड़ देता है। तो ऐसा पर हाँ, मेरी योग्यता नहीं, मेरी योग्यता है कि जिंदा है तो जब तक सांस तब तक आस। तो ये कहते हो कि साहब मुद्दा ठीक नहीं होते, कि मैं झूठ बोलूंगा। बहुत से पढ़े हैं दुनिया में ऐसे ऐसे कि खाली वो सोच ले तो इधर की उधर सृष्टि हो सकती है। बहुत पढ़े तो भगवान के यहाँ जो जुड़ गया। अरे एक नश्वर बाप कहते जिसका ठिकाना नहीं, अगर उसका बेटा इच्छा करता है तो बाप पता नहीं कौन कौन से नियम तोड़ करके उसकी इच्छा पूर्ति कर देता है। तो जो मालिक को जिसने अपना बाप बना लिया है, मालिक की इच्छाओं पर जो नाच रहा है, मालिक उसकी इच्छा ही नहीं पूरी करेगा क्या? सुना है? हाँ जी। इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस गलत कह रहे हैं। अकेले राजकोट में इसके 6000 से ज्यादा रोगी हैं, अकेले राजकोट।
और हमारा कोई भी शिविर ऐसा नहीं होता जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का रोगी ना आए। राजकोट का इस बार तो नहीं आया था, आया था कि इस बार याद नहीं है। इस बार काफी लोग थे ना वहाँ से, 18 तारीख को याद नहीं है। तो 100% और अपना पहला रोगी हमारा परेश भाई सागरिया साहब ठीक हुए और आज वो गाइड कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को गाइड कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं, खुद वो ठीक कर चुके हैं। उनका था कि डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया था, ऐसा दुबला पड़ गया तो साधना में जुड़े 100% और ये केस नहीं 100%। अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण डॉक्टर को नहीं मालूम है। एक्चुअल में अल्सरेटिव चाहे वो कोलाइटिस अल्सर चाहे वो कोलन का हो, अल्सर चाहे वो आमाशय का हो, अल्सर अगर है तो अल्सर का प्रमुख कारण तनाव है। अल्सर का प्रमुख कारण तनाव है। अगर रोगी बिल्कुल ठीक हो गया है और उसको तनाव दे दीजिए, 1 घंटे के अंदर ब्लास्ट कर जाएगा, फिर से फोड़ा टूट जाएगा अल्सर वहीं। अब डॉक्टरी में चूंकि तनाव मुक्ति का कोई इलाज है नहीं, इसीलिए वो कहते हैं कि लाइलाज है। हम लोग क्या शुरू होता है ध्यान और सेवा से, ध्यान और सेवा से शुरू होता। हमारे यहाँ तनाव जितने आए हैं पहले दिन से है, ये मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं, बीमारियां इनकी नहीं खत्म हो गई हैं। हाँ, सारी बीमारियां नहीं खत्म हुई हैं, परंतु किसी को बीमारी का भय नहीं है, एक बात पक्की है। आज मस्ती से जी गए, तनाव मुक्त कर दिया गया है। बीमारी तो धीरे 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 शादी में रिजल्ट हाँ दिखाया गया, ठीक है ना। बीमारी तो धीरे धीरे है, क्योंकि शरीर को चेंज होने में 7 साल लगते हैं, पूरे सारे सेल बदलने में 7 साल। इसीलिए हम लोग क्या ये बीमारी 100% ठीक हो। पैसे की जब कमी हो तब भगवान का जो पैसा निकाला है उसमें से कर्जा ले सकते हैं कि नहीं? धोखे से भी ये गलती मत कर देना, धोखे से भी मत करना। कहीं से भी कर्जा ले लेना, कहीं से भी कर्जा ले लेना, पर भगवान के पैसे को टच मत करना। यही परीक्षा की घड़ी होती है, यही परीक्षा की घड़ी होती है। दूसरी बात, जब खेड़ू जानता है कि घर में चना नहीं है, गेहूं बहुत, चना नहीं है, गेहूं बहुत, बाजार में भी गेहूं बहुत है, चना बहुत कम है। अब खेड़ू को खेत में बोना है अर्थात फेंकना है, तो गेहूं फेंकेगा कि चना फेंकेगा? क्या फेंकेगा? चना फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? क्योंकि चना उसको चाहिए। प्राय लोग कहते हैं साहब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे निकालूं? तो खा रहे हो तो खाने से निकालो, कपड़ा है तो कपड़े से निकालो, जब पैसा आए तो पैसे से निकालोगे तभी तो तुम्हारे जीवन में आएगा। फिर भगवान ने परीक्षा लेता है। अभी तक तुम्हारा काम खाली है, संकल्प कर लो कि इस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। देखना कि आपका काम कहाँ से चल जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक खास बात है कि दशांश निकालने वाले के काम कभी रुकता नहीं है। गारंटी है कि काम नहीं रुकेगा, पैसा भले न दिखाई दे उसको। क्योंकि मैंने जब से प्रयोग किया है 1984-85 तक, जब से मैंने प्रयोग किया है, बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए। हमने जिंदगी को 3 बार 0 से शुरू करके देखा, 3 बार 0 से शुरू करके देखा क्या होता है। मालिक कितना दमदार है, उसकी दमदारी पे शक नहीं है। शुरू की बात एक बता दूं मैं घटना। तो हम हॉस्पिटल, हमारा 25 बेड का अपना हॉस्पिटल पहले अलीगढ़ में था, बाद में 100 बेड के हॉस्पिटल का इंचार्ज रहा। तो जब मैं अपना हॉस्पिटल चलाता था, सबकी बात है हिसाब किताब मेरे बस की नहीं होती, अभी भी नहीं। आपको मजबूरी में संस्था का करना पड़ता है। हाँ, ये सब दुनिया भर का नहीं, मेरे बस की हिसाब किताब नहीं है। तब बड़े भाई साहब हमारे देखा करते थे, हम हॉस्पिटल चलाते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि पैसा चाहिए,
बिजली का बिल देना है, हाउस टैक्स देना, और बार दुनिया भर के ये बात 87-88 के आसपास की गई हो, तो कितना चाहिए? फिर 10,000 रुपया चाहिए। पूछा बैंक में, बोले बैंक में 1,000 पाओ। तो ठीक है, कब देना? बोले परसों तक चाहिए, परसों तक व्यवस्था चाहिए 10,000। ठीक है, अभी कल तो बीच में पड़ा शाम को मिलना। अच्छा, दूसरे दिन देखा कि चेक आया, और सॉरी ड्राफ्ट आया हमारे यहाँ। दूसरे दिन ड्राफ्ट आया था 10,500 रुपये। वो ड्राफ्ट क्या था? आपको आश्चर्य लगेगा कि कभी एक रोगी, एक नौजवान किसी हॉस्पिटल में नीचे उठ के गया, उपवास कराया, और उपवास ब्रेकिंग गलत ढंग से करा दिया गया। उसको जब उपवास ब्रेक कराया तो उसमें संत प्रक्षालन कराया, और बाद में उन्होंने खिचड़ी खिला दी। उपवास ब्रेक कराया, वाटर फाइटिंग को ब्रेक कराया। तो उपवास का मारा जल्दी ठीक नहीं होता, उपवास ही से ठीक होता है। उपवास अगर गलत ढंग से ब्रेक कराया गया तो भयंकर स्थिति होती है। तो वो सब जगह से हार करके आया हमारे हॉस्पिटल में, और 1,000-1,500 रुपये कुछ उसके पास थे। उस समय वो मेरी लीज मेरे को दिए, बोले साहब इतने पैसा है मेरे पास, इससे ज़्यादा पैसा मैं व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ करो तो कर दो इलाज होगा। हम तो उपवास के मारे हुए नहीं थे, तो हमने कहा कि ठीक है यार, चलो पैसा रख लिए। अब जो हमारे रोगी आते थे बड़े लोग, तो उसके जूस का हल्का जो भी उसका होता था वो उनसे करवा देते थे। तो वो 1,000-1,500 रुपये जमा कर दिया करते थे, खाते व्यवस्थाएं करते रहे। जब वो रोगी बिल्कुल ठीक होकर के गया, नौजवान बिल्कुल ठीक होकर के गया, तो उसने कहा डॉक्टर कितना हिसाब बना, अभी तो नहीं है मेरे पास, बाद में भेज दूंगा। अरे मैंने कहा तू ठीक हो गया, जाओ मौज कर, कोई समस्या है तो आ जाना, काय को पैसे के पीछे पड़ा? तेरे से मांगा क्या किसी ने? तेरे को कुछ कमी हो तो तू बता, ठीक है? आई गई बात भूल गए। करीब 6 साल बाद उसने वो 10,500 रुपया भेजा। ड्राफ्ट मेरे नाम ही था, बैंक में पड़ा, अगले दिन पैसा विड्रॉ हो गया। ये एक घटना तो मुझे खूब याद है मुझे ये। और जीवन में जब से दशांश निकाला, तब से कभी उलट करके नहीं देखना पड़ा, ना मेरे को न मेरे साथियों को, कहाँ से मालिक देगा। योगी जी महाराज कहते थे कि हाथ मत पकड़ो मालिक का, तुम्हारे पास है तो फिकर न करो, और न दे मालिक तो काम मत करो, उधार मत लेके करो। मालिक अगर नहीं दे रहा हो काम बड़ा है तो मत करो उस काम। क्यों? क्योंकि मालिक नहीं चाहता कि इस काम को किया जाए। मेरठ आश्रम की बात है, शुरू की बात है, जब आश्रम बना 94-95 की बात। मेरठ शिफ्ट हुआ बरेली से आश्रम, तो बड़े बड़े लोग बैठे साथ के आश्रम कैसे चले इसके लिए मीटिंग कमेटी बैठी था। बड़े बड़े अफसर थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, योगी जी को मानने वाले का। सुबह से शाम तक बैठे रहता योगी जी के कमरे में ही, बाहर अंदर बैठे। करीब 4-4:30 बजे सब में जब मीटिंग खत्म हुई तो बोले कि योगी जी महाराज ये जरा सा एक ड्राफ्ट बनाया है, इसको सुन। तो योगी जी महाराज बोले, उनके साथ एक किशन भाई रहते थे सेवा में। किशन, क्या नाश्ते की घंटी नहीं लगी? योगी जी ने सुना ही नहीं वो की बात। किशन भाई बोले कि योगी जी वो आधे घंटे पहले लगे। अरे तो नाश्ता बंद होने वाला होगा, काम करो, फटाफट नाश्ता करो। सबने नाश्ता कर, योगी जी की आज्ञा पहुंचा, नाश्ता हो गया। फिर सबने कहा योगी जी महाराज ने इसको सुन लीजिए। अरे किशन, वो सत्संग की घंटी नहीं लगी क्या? बोले महाराज जी वो पहले लग चुकी है। अरे पहली लगी, इनको नहाना धोना भी होगा। हमारे यहाँ पहली घंटी का मतलब होता है काम बंद कर दीजिए, फटाफट तैयार हो। दूसरी घंटी 15 मिनट बाद लगती है, इसका मतलब आप घर से निकलिए, सत्संग हॉल की तरफ बढ़िए। और तीसरी घंटी के बाद सारा काम बंद, अब कहीं कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे बोले दूसरी लग गई तो पूरी लोगों को, तो अब
अखिलेश जी महाराज अध्यक्ष थे उस कमेटी में, बोले कि महाराज जी एक ड्राफ्ट तैयार किया तो जरा आप सुन ले, 2 मिनट सुन ले तो चले। बोले क्या ड्राफ्ट किया, किस चीज का? बोले महाराज जी मुझसे पहले बताया था ना, ये संस्था भविष्य में कैसे अपने पैरों पर खड़ी रहे, आर्थिक रूप से इसको किसी तरह की जरूरत कभी न पड़े और चलती रहे, इसके लिए ड्राफ्ट किया। और ये बोले सवेरे से तुम लोग इस काम में बैठे हो, सवेरे से तुम लोग ये कर रहे हो। खबरदार खबरदार, अगर तुमने सोच भी लिया ये संस्था बंद हो जाएगी, क्योंकि यह संस्था भगवान की संस्था है। कैसे चलेगी भगवान का काम है सोचना। हाँ, जिस दिन भगवान पैसा देना बंद कर दे, समझ जाना मालिक अभी संस्था को नहीं चलाना चाहता है। जिस काम में भी मालिक पैसा न दे उस काम को मत करो, मालिक नहीं चाहता है जिस काम को किया। ये 95 की घटना है साहब। और आज तक मैंने कभी भी आश्रम में पैसे की क्राइसिस नहीं देखी। हाँ, थोड़ी समस्या जब अखिलेश जी महाराज का शरीर पूरा हुआ तब थोड़ी समस्या, क्योंकि उस समय हम लोगों को नहीं मालूम था कुछ भी, परंतु गजब देखा, अपने जीवन में देखा, संस्था को देखा और अपने साधकों को देखा। इसीलिए कभी ये सोचना भी मत कि भगवान के पैसे को हम यूज करेंगे, सोचना भी मत। आगे बढ़ो, हमारा काम अगर वाजिब है तो रुकना नहीं है। एक बात पक्की, कहाँ से मालिक देगा ये हम नहीं जानते, कहाँ से मालिक देगा हम नहीं जानते। एक छोटी सी और घटना बता दूं अगर आपको, तो बिगनिंग शुरू के टाइम की जब योगी जी महाराज से तभी की ये बात है, संस्था में जो पैसा आता है भगवान का, संस्था उसके 4 पार्ट करती है। मान लीजिए किसी ने 1 लाख भगवान का भेजा तो संस्था उसके 4 भाग करेगी। पहला काम 10% भगवान का निकालेगी ईमानदारी से, एक पैसे का 10% निकलेगा, वो अकाउंट विभाग की ही जिम्मेदारी है को निकालना। वो 10% संस्था में खर्च नहीं होता, संस्था की बैलेंस शीट का पार्ट होता है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी भी है संस्था पर संस्था के किसी प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं होता। अदर प्रोजेक्ट पर खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, बहुत से विद्यार्थियों के जाता है, शादी ब्याहों में जाता है, फीसें जाती हैं, जैसे मतलब वो स्पिरिचुअल हेड की इच्छा है। अभी करीब 25 से 30 लाख की कॉपियां हर साल संस्था बांटती है। आधा पैसा उसमें फ्री नहीं बांटती है, आधा पैसा एक कॉपी बंद करके जो तैयार होती करीब हम लोगों की 13-14 रुपए की 15 रुपए बन के तैयार होती है, परंतु मार्केट में खरीदने जाए तो करीब 40-50 रुपए की और होती है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं की होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना रिजल्ट लाइए और दिखाइए और अपना कॉपी का बंडल, तो 200 रुपये उनसे लेते हैं और 200 रुपये 300 रुपये संस्था अपनी जेब से लगाती है। लाखों रुपए की भी पूरा ग्रामीण क्षेत्र ले जाता है। वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्म प्रमुख जहाँ कहकर है 20% साधक को प्रसाद जाता है। अगर किसी ने 1 लाख निकाला है तो 20,000 रुपए का सामान जाएगा उसको। हाँ, 20% उसको प्रसाद। ये पाई आने का नहीं होता, 20% पाई आने में नहीं निकलता। अरे 10-20 रुपया ज़्यादा, 10-20 रुपया कम का भी हो सकता है। हाँ, भगवान का पाई आने में निकलेगा। 10% अगर लोकल कमेटी बनी है और उसको खर्चे की जरूरत पड़ रही है प्रचार प्रसार में, तो 10% वहाँ भी कमेटी को देती है अगर जरूरत पड़ती है। बाकी 60% से अदर काम सारे संस्था देते हैं। 60% से सारे काम संस्था। तो एक बार की बात शुरू में, पर मैं टूर पे नहीं जाता था, अंदर जो वो जो 10% जो खर्च हो रहा था, ये डिपार्टमेंट मेरे पास ही था। उसको नाम दिया गया निकटवर्ती ग्रामीण समाज की क्रियात्मक सेवा।
तो उस समय गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं थी, तो बड़ी शिकायतें आ रही थी। कोई मोतियाबिंद वाली गाँव में आदमी ऑपरेशन नहीं करा पा रहा, लेंस नहीं खरीद पा रहा। तो हमारे को आदेश हुआ योगी जी महाराज का कि इन सबका फॉर्म भरवाओ, जो है इनके इकट्ठे करो आसपास के ग्रामीण वालों के, क्या कराते हैं ऑपरेशन। एक आई कैंप लगाया वहाँ पर, वहाँ पर लोगों की आंखें चेक हुई, जो दवाई से ठीक हो सकती दवाई दे दी गई, और जो नहीं ठीक हो सकती उनको ऑपरेशन के लिए छाटा गया। उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज में ले जाकर के ऑपरेशन कराया गया। ले जाना, करना, खाना पीना। तो करीब हम लोगों के पास जो उस समय फंड था, शायद 60,000 के आसपास फंड था, जिससे ये सब करना था। पर बड़ी मजे की बात ये हुई कि जब लेंस पढ़ करके सब हुआ, तो मालूम पड़ा कि इसमें करीब 36,000 रुपया ज्यादा खर्च हो गया था। काम बीच में तो रोका नहीं जाएगा, फिर तो जो है वो करते रहो, अकाउंट विभाग से पैसा लेते रहे। करीब 36,000 रुपया ज्यादा खर्च। तो मीटिंग बैठी थी, तो मालूम पड़ा 36,000 रुपया ज्यादा खर्च हो गया। तो एक व्यक्ति वरिष्ठ साधक थे, परंतु बाहर से आए तो फौरन के साधक बोले, योगी जी आप कहते हैं कि भगवान देवता है, अब ये 36,000 रुपये आपने खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, अब ये कहाँ से आएगा आपके पास? आपने किसी मत का तो खर्च किया, इस मत में तो था नहीं आपको, तो कहाँ से आएगा 36,000? उन्हीं का मालिक का काम था, मालिक जाने कहाँ से देगा। अभी तो खर्च करा दिया उसने, खर्च कराया तो दिया सही, अब कहाँ से पूर्ति करेगा डिपार्टमेंट की जाने। अभी ये मीटिंग चली रही के बाद तब तक डाकिया आया, डाकिया डाक देने आता है आश्रम। तो डाकिया आया, तो उसने जो डाक दी, तो वैसे अखिलेश जी महाराज ने पलटा, एक लिफाफे को देखा कि कोई नाम नहीं पड़ा था, खाली संस्था का नाम पड़ा था, भेजने वाले का कोई कुछ। जब खोला तो $1,000, नेट $1,000 था, और उस समय 36 रुपया का ही डॉलर होता था। नेट 36,000 रुपये। तब योगी जी ने कहा कि देखिए अभी राम जी ने भेजा है, मैं क्या बताऊँ आपको, इसका प्रसाद भी नहीं दे सकते कि किसने भेजा ये नहीं लिखा, तो प्रसाद भी नहीं जाएगा इसका। नहीं तो भाई ठीक है कि प्रसाद निकल जाता तो मान लेते कि कम होता 20% प्रसाद निकल जाता, और वो भी नहीं देगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं संसार में। कभी सोचना भी मत कि आपको जरूरत पड़ेगी और भगवान का पैसा ही, फिर भी अगर नहीं तो काम को रोक देना पड़ा। इसका मतलब मालिक की इच्छा नहीं, तो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी अगर जरूरत है और जरूरी है तो मालिक कहाँ से देगा ये नहीं। पथरी का इलाज क्या है? पथरी जो होती है ये एसिड की होती है। पथरी जो होती है ये एसिड की होती है। जहाँ जहाँ बॉडी में एसिड इकट्ठे हो सकते हैं वहाँ वहाँ पथरी बनती है। जैसे पित्ताशय नाम, गॉलब्लैडर जो है वो उसका नाम ही पित्ताशय, वहाँ एसिड इकट्ठा होता है, तो पथरी वहाँ बनती है। मूत्र एसिडिक होता है, और किडनी फिल्टर करती है, ब्लड को मूत्र निकालती है, तो मूत्राशय में भी पथरी बनती है, किडनी में भी पथरी बनती है, और शुक्र भी एसिडिक होते हैं, इसलिए शुक्राशय में भी पथरी बनती है। वीर्य जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ भी पथरी बनती है। ये पथरी बनती कैसे है? जैसे आपने देखा होगा बाल्टी में पानी रखते हैं और नीचे अगर सफाई न करिए तो नीचे जम जाता है कार्बन, सार्वजनिक जगहों पर ज्यादातर होता है। तो वो तो चूंकि बाल्टी ऐसे रहती है, स्थिर रहती है वहाँ, इसलिए। और हमारे शरीर में ऐसे क्रिस्टल छोटे छोटे, पहले एसिड तो लिक्विड होता है, परंतु अगर ये ज्यादा हुआ तो धीरे धीरे सॉलिड होता है। तो छोटी सी कोई ऐसे क्रिस्ट बनती है और धीरे धीरे उस पर एसिड लिपटता 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 लिपटता। इसको समझना है तो जैसे वो मंदिरों में प्रसाद बनता है ना, देखा है शक्कर का, क्या कहते हैं, साकरिया नहीं, साकरिया तो मछली होती है, साकरिया
चिरौंजी कहते हैं कई लोग।